جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ڈیئر اسٹوڈینٹس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آج آپ کے ساتھ ترافی شہباز۔ تو بیٹا جی روٹین کے مطابق میں یہ بتاتا چلوں، جس طرح آپ کے لیے پہلے بھی میری ویڈیو آپ کے پاس آ رہی ہے اور آپ کے لیے نمبر اگین کرنا اس کے قریب آپ کو لے کے جا رہی ہے، تو بالکل اسی طرح میں ان کامیابیوں کے سلسلے کو سمیٹتے ہوئے آج بیٹا جی میرے پاس گریڈ ہے 9 اور سبجیکٹ ہے ترجمہ القرآن۔ تو بیٹا جی میرے پاس سبجیکٹ ہے ترجمہ القرآن۔ بیٹا جی اس کی میرے پاس ہے پیرنگ اسکیم ہے۔ تو بیٹا جی ترجمہ القرآن کی جو پیرنگ اسکیم ہے ہمارے پاس، وہ ٹوٹل نمبر ہمارے پاس 50 ہے۔ ٹوٹل نمبر کتنے ہیں ہمارے پاس؟ 50 ہے۔ بیٹا جی اس میں پہلی چیز کے ذہن میں رکھ لیجیے، حصہ معروضی ہے۔ حصہ معروضی بیٹا جی اس کے 10 نمبر ہے۔ اور دوسری چیز ہمارے پاس وہ ہے حصہ انشائیہ سے تعلق رکھتی ہے۔ دوسری چیز حصہ انشائیہ سے تعلق رکھتی ہے۔ تو بیٹا جی یہاں ہمارے پاس جو چیز ہے وہ ہے مختصر سوالات۔ بیٹا جی مختصر سوالات ہیں، 10 نمبر اس کے۔ اور اس کے بعد اگلی چیز ہے الفاظ کے معنی۔ الفاظ معانی 5 نمبر اس کی۔ اور بیٹا جی اس کے بعد تیسری چیز ہے میرے پاس آیات کا بامحاورہ ترجمہ، 15 نمبر اس کی۔ اور بیٹا جی آخری چیز ہے میرے پاس وہ ہے تفسیری سوال۔ آخری چیز بیٹا جی تفسیری سوال وہ ہے 10 نمبر۔ بیٹا جی حصہ معروضی سے میرے پاس ہے 10 نمبر۔ 10 نمبر میں ہم نے پلس کیے مختصر سوالات کی 10 نمبر، 20 ہو گئے۔ اور بیٹا جی 20 میں ہم نے 5 نمبر پلس کیے الفاظ معنی کے، 25۔ اور 25 میں ہم نے 15 نمبر پلس کیے بامحاورہ ترجمہ، بیٹا جی 40 ہو گئے۔ اور ان 40 میں 10 نمبر ہم نے جو لانگ کویشچن ہے تفسیری سوال ہے وہ ہم نے پلس کیا، تو بیٹا جی یہ ہمارے پاس کل 50 نمبر ہو گئے، کل ہمارے پاس 50 نمبر ہو گئے۔ بیٹا جی یہ تھا میرے پاس پیرنگ اسکیم سے متعلقہ پہلا حصہ۔ تو بیٹا جی آگے میں بات بتاتا چلوں آپ کو کہ میرے پاس ہے حصہ انشائیہ۔ حصہ انشائیہ تو اس میں سب سے پہلے بیٹا میں یہ بتاتا چلوں ہمارے پاس ترجمہ القرآن ہے، اس کی 18 صورتیں ہیں۔ ترجمہ القرآن کی 18 صورتیں ہیں۔ یہ بیٹا میرے پاس ہے ترجمہ القرآن، اس کی کل صورتیں ہیں 18۔ لیکن ان 18 میں سے بیٹا جی ان 18 میں سے 6 منتخب صورتیں، 6 منتخب صورتیں، اور اس کے علاوہ 12 باقی صورتیں۔ 6 منتخب صورتیں اور 12 کون سی ہیں؟ جو باقی صورتیں۔ اب بیٹا جی 6 منتخب صورتیں وہ کون سی ہیں؟ اس میں پہلی جو صورت ہے وہ ہے سورہ مریم۔ اور بیٹا جی اس کے بعد جو دوسری صورت ہے ہمارے پاس وہ ہے سورہ طٰہٰ۔ اور اس کے بعد بیٹا جی تیسری صورت ہمارے پاس وہ ہے سورۃ الانبیاء۔ اور بیٹا جی اس کے بعد
हमारे पास जो चौथी सूरत है वो है सूरतुल हज, और पांचवी सूरत बेटा जी उसके बाद है हमारे पास सूरतुल फुरकान, और छठी और आखिरी सूरत बेटा जी वो है हमारे पास सूरतुल अहकाफ। बेटा पहली सूरत सूरह मरियम, दूसरी सूरह ताहा, तीसरी सूरह अंबिया, चौथी सूरह हज, पांचवी सूरह फुरकान और छठी है सूरह अहकाफ। बेटा ये 6 सूरतें हैं जिनकी सॉरी बेटा, ये 6 सूरतें हैं जिनकी मुंतखब आयात हैं, जहां से आपका जो बामुहावरा तर्जुमा दिया जाएगा वो इन सूरतों से आएगा। हाँ बेटा यहाँ से मजीद डीपली मैं आपको सारी बात बताते चलूं। सूरह मरियम से कितनी आयात होंगी? तो बेटा जी वो है 30 ता 36, 30 ता 36 सूरह मरियम से आयात है। और इसी तरह सूरह ताहा की मैं बात करूं तो बेटा जी सूरह ताहा में 25 ता 37, 25 to 37, और उसके बाद सूरह अंबिया की बात करूं तो बेटा जी ये मेरे पास है 30 ता 35, और उसके बाद बात में आगे बढ़ाऊं तो बेटा जी मेरे पास सूरह हज की जो आयात है वो 65 ता 69 है, 65 से 69, और बेटा जी उसके बाद सूरह फुरकान, यहाँ से जो हमें आयात मुंतखब जो हमने करनी है वो 63 का 77, और लास्ट है बेटा हमारे पास सूरह अहकाफ है। सूरह अहकाफ इसकी सबसे कम आयात है जो हम करेंगे वो 13 ता 15। जी बेटा उम्मीद है बात वाज़ेह हो गई होगी, मैं दोबारा बात वाज़ेह कर दूं। सॉरी बेटे, सूरह मरियम इसकी जो आयात मुंतखब है 30 से 36 तक, और सूरह ताहा की 25 से 37 तक, और सूरह अंबिया की 30 से 35 तक, और सूरह हज की 65 से 69 तक, और सूरह फुरकान की 63 से 77 तक, और सूरह काफ है सूरह अहकाफ है 13 से 15 तक। बेटे जी ये आपकी वो मुंतखब आयात है, यहाँ से आपको क्या आएगा, यहाँ से मुंतखब आयात आएगी जो आपके सामने बाप मुहावरा तर्जुमा। अब बेटा ये जो 6 मुंतखब आपकी सूरतें, यहीं पर मैं ये बात बताता चलूं। अब यहाँ से जो हमारे पास ये सवाल है कि बामुहावरा जो हमने करना है, बामुहावरा जो हमने तर्जुमा करना है, तो बेटा जी उस बामुहावरा तर्जुमा करने के लिए हमारे पास जो बोर्ड पैटर्न है, जो पीरी स्कीम है, उसमें बेटा जी हमें 5 आयात दी जाएंगी, 5 में से हमने 3 करनी है। 5 आयात आएगी जिनमें से हमने 3 करनी है, और हर एक के 5 नंबर है। 3 × 5 = 50। बेटा जी 15 नंबर यूं हो जाएंगे, 15 नंबर यूं हो जाएंगे। और इसके बाद हमारे पास जो बेटा अगला सवाल था अल्फाज मानी, अल्फाज मानी जो इसकी पहली स्कीम है बेटा जी वो भी बड़ी सिंपल है, बहुत ही आसान है। 8 में से 5 अल्फाज के मानी हम बताएंगे। हर मानी का एक मतलब होगा, हर मानी का एक मतलब होगा, तो 5 × 1 = 5। बेटा ये 15 नंबर ये थे, 5 नंबर ये। इस 5 में मैं प्लस करूं अगर 15, तो बेटा ये हमारे पास बनते हैं 20 नंबर। 20 नंबर ये हो गए। और बेटा जी 10 नंबर थे हमारे पास एमसीक्यूज के, तो ये हमारे पास हो गई 30 नंबर। और उसके बाद बेटा जी हमारे पास थी मुख्तसर सवालात की बात करते हैं, तो बेटा उसके बाद मुख्तसर सवालात बेटा यहां भी ऐसे ही है, 8 में से 5 करने, 8 में से 5 करेंगे हम। अब 5 × 2 = 10।
10 नंबर ये 10 नंबर बेटा ये होगी 30 में 10 नंबर हमारे पास बेटा जी कुल हमारे पास होगी 40 नंबर। अब हमारे पास बेटा जी आखिरी सवाल रह गया, आखिरी सवाल रह गया वो है तफसीली सवाल। बेटा जी वो है हमारे पास तफसीली सवाल। बोर्ड पैटर्न के मुताबिक 2 में से एक करना है। बेटा जी 2 में से एक करेंगे और इस एक के जो नंबर है 10 है, 10 नंबर है। अब बेटा जी इस 10 को हम लेके 40 के साथ तो इधर प्लस करते हैं तो हमारे पास कुल नंबर बनते हैं 50। तो बेटा जी यूं हमारे पास ये 50 नंबर पूरे हो जाते हैं। उम्मीद है कि बात समझ आ गई होगी। और अब अगली बात बेटा ये 6 मुंतखब जो सूरतें मैंने वो आपके सामने बता दी और वहां हमारा तर्जुमा वहां से आएगा। और हाँ जो बेटा ये जो अल्फाज पानी है ये अल्फाज मानी कहां से आएंगे, जो जखीरा अल्फाज है, जो जखीरा अल्फाज है यानी कि इन्हीं सूरतों के जो अल्फाज है, वर्ड्स मीनिंग है, अल्फाज मानी है बेटा ये वहां से अल्फाज 8 आएंगे जिनमें से हमने 5 करने होंगे। तो 8 में से 5 ही अल्फाज के मानी हम बताएंगे। तो बेटा ये बात हो गई। और रही बात बेटा जी मुख्तसर सवालात की, ये मुख्तसर सवालात का ताल्लुक बेटा ये जो बाकी हमारे पास 12 सूरतें इसमें बेटा ये सूरह शुआरा भी है और बाकी भी सारी तफसील से बाकी भी सारी सूरतें हैं। तो ये सारी यहाँ से क्वेश्चन आएगा। और उसके बाद जो तफसीली सवाल है बेटा तफसीली सवाल इन्हीं मुंतखब सूरतों से जो आएगा उसमें तारुफ होगा। मुंतखब तफसीली सवाल में तारुफ और अहम मज़ामीन और खुलासा और अहम नकात बेटा जी इन सब पर मुश्तमिल होगा तफसीली सवाल। ये तफसीली सवाल इन सब पर मुश्तमिल होगा। तो बेटा जी उम्मीद है बात समझ आ गई होगी। तो हो सच याद आया, याद करवाना पड़ता है बेटा, क्या करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो कर दिया ना, चलो शुक्र है शुक्र है। और हाँ बेल आइकन भी कर देना, लाइक तो आप ऐसे ही करते हैं। तो बेटा जी मैं अच्छे से आपके जो कमेंट्स हैं उनको मैं वेट भी करता हूँ, उसका इंतजार मुझे भी रहता है जिस तरह आप लोगों को मेरी अगली वीडियो का इंतजार रहता है। तो बेटा जी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन भी कीजिए और लाइक भी कीजिए और फॉलो भी कीजिए और बेटा जी अच्छे से कमेंट्स भी कीजिए और मेरी अगली वीडियो का इंतजार भी कीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।